November is National Bladder Health Month. While many of us are not always thinking about our bladder health, this month serves as a reminder to get the facts about common bladder health problems and to take an active role in taking care of our health. In an exclusive conversation with PBNS, Dr. Amrendra Pathak, a senior consultant and urologist at Sir Gangaram Hospital, tells us why it is crucial to understand the significance of Bladder Month. Urology Care Foundation, which is the parent body of American Urology Association, has declared month of November as Bladder Disease Awareness Month. And the 4 week has 4 categories of urinary bladder disease. So this November, internationally, it has been now accepted as to increase the awareness of bladder disease among the citizens of each and every country. And uh, accordingly, people take chance to uh, make the citizen of that country to make aware and discuss and deliberate about the various urinary bladder disease and how to tackle it and how to reduce the morbidity, and if the disease is in advanced stage, how to cure it. So this is the idea behind selecting month of November as a urinary bladder disease month. Though bladder related diseases are very common, people are usually embarrassed to talk about them and hence do not seek proper treatment. These conditions include incontinence, overactive bladder, etc. Dr. Amrendra Pathak highlights the symptoms and cures for these conditions. The most embarrassing condition of this urinary bladder is urinary incontinence. It means we have a urinary bladder and we hold urine in it for 2 hours, 3 hours, or even for 6, 7 hours. And we have, when we have desire to void, we find out privacy and go and uh, pass our urine in 20 to 30 seconds normally, and then carry on our usual work. So this is the normal uh, functioning of bladder. It is controlled by a sphincter which did not allow urine to leak. But there are various conditions which leads to involuntary leakage of urine, that without your knowledge urine is coming out from bladder and wetting your dress. So there are many causes of it, and but in general urological condition, we have seen that overflow incontinence is one of the common cause, which is easily treatable. In case in case of male, enlarged prostate with retention of urine is one of the cause. इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, और प्रोस्टेट बड़ा होने से उसका जो पेशाब के थैली से पेशाब निकलने का रास्ता है वो संकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, और पेशाब के थैली को मुश्किल से पेशाब निकालने की जगह मिलती है। इसका अगर सही रूप से शुरू में इलाज न किया जाए तो उससे क्या होता है कि वो पेशाब जमा जमा होते होते वो पेशाब भर गया, अब पेशाब के थैली में इतनी ताकत रही नहीं कि उसको अच्छी तरह से खाली कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट अनअवेयर है। प्राय ऐसा होता है कि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है कि किसी का पेशाब रुक जाए तो वो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेता है और उसको कैथेटर लगवाना पड़ता है। लेकिन जब ये काम बहुत धीरे धीरे होता है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ 3 मंथ धीरे धीरे पेशाब रुकना शुरू हुआ तो आदमी को पेन नहीं होता है और वो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होने लगता है, पेशाब धीरे धीरे उससे निकलने लगता है और उसको पता नहीं चलता है। तो एक कारण तो ये है जिसको इनकंटिनेंस का, जिसको हम लोग ओवरफ्लो इनकंटिनेंस बोलते हैं। ये फीमेल में भी हो सकता है अगर उसमें स्ट्रिक्चर हो।
प्रोस्टेट या गदूद के अलावा एक कारण है जिसमें की होता है, उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है, पेशाब निकलने का जगह नहीं मिलता, उसमें भी ये चीज होता है कि पेशाब रुक के ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होने लगता है। इसके अलावा जो और कॉमन डिजीज है जिसमें कि पेशाब पर कंट्रोल कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसमें आता है एक ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें कि पेशाब की थैली बिना बिना नॉलेज के सिकुड़ जाती है और पेशाब इनवॉलेंटरीली बिना हमारे नॉलेज के बाहर निकल जाता है। अदर कॉज जो है वो है कि कभी कुछ पेशाब के रास्ते का मेलिग्नेंसी हो, या कभी ऑपरेशन के दरमियान जो पेशाब को कंट्रोल करने वाला जो मशीन होता है वो डैमेज हो जाए, या ऑपरेशन जो गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है स्त्री रोग से रिलेटेड, जैसे सीजेरियन सेक्शन हुआ या बच्चादानी निकालने का जो ऑपरेशन हुआ जिसे हम लोग हिस्टेक्टोमी कहते हैं, उसमें पेशाब के थैली में डैमेज हो जाए या यूरेटर में डैमेज हो जाए, तो उसमें भी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है, पेशाब पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। कुछ जो रेयर डिजीज हैं जैसे कि न्यूरोजेनिक, जिसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, पेशाब के थैली का जो नर्व होता है, नस होता है, वो कमजोर हो गया या काम करना बंद कर दिया। इसका कुछ कारण है, जैसे एक पार्किंसनिज्म डिजीज होता है, उसमें भी पेशाब पर से कंट्रोल कभी कभी कम कम हो जाता है और पेशाब लीक करने लगता है। और जो अदर कॉमन डिजीज है उसमें हम बोलते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हिंदी में लकवा भी बोला जाता है, कि आदमी के माथे का नस फट गया, आदमी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर उसका पेशाब इनकंटिनेंस होने लग गया, अपने आप निकलने लग गया बिस्तर की, उसको जानकारी नहीं है कि उसका पेशाब रुका हुआ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी पेशाब पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और हम लोग उसको इमीडिएटली ठीक करने का कोशिश करते हैं। There is another condition in which a person faces frequent urination during the night. Bedwetting also comes under it, and it is mostly observed in children. इसमें दिन में जब आदमी जगा रहता है तब यूरिनरी इनकंटिनेंस लीकेज नहीं होता है। जब आदमी गहरी नींद में सोया हुआ है तो उस कंडीशन में पेशाब लीक कर जाता है। तो ये जो नॉक्टर्नल बेड वेटिंग है, उसका हम लोगों के क्लिनिकल लाइफ में दो तीन इम्प्लीकेशन है। एक तो जो नॉर्मली बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 2-3 साल के बाद वो ब्लैडर ट्रेंड हो जाता है, मतलब उसको जानकारी हो जाती है कि बिस्तर पे पेशाब नहीं करना है, उसमें सेंस डेवलप कर जाता है और वो टॉयलेट में जाके पेशाब करता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन 4 से 5% बच्चे में ये सेंस सही टाइम पे डेवलप नहीं करता है, और वो 5 जब स्कूल गोइंग एज में आ गया तो रात में कभी कभी गहरी नींद में उसका पेशाब लीक कर जाता है। तो इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, रात में पेशाब लीक हो जाना। बच्चे में ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसका ये इंसिडेंस कम होते जाता है, और मदर फादर के गुड पेरेंटिंग से भी ये कम हो जाता है। लेकिन कुछ केस 2-3% ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। उसमें हम लोग ये सलाह देते हैं कि बच्चे को सबसे पहले तो रिवार्ड दिया जाए, अगर वो उस उस मंथ में या उस वीक में बिस्तर गीला नहीं करेगा, रात में उठ के पेशाब करेगा, तो उसे कुछ प्राइज मिलेगा। और दूसरी बात कि हम लोग एक अलार्म क्लॉक का यूज करते हैं और टेंटेटिवली देखते हैं कि बच्चा अगर 10 बजे सो रहा है तो वो रात में कितने बजे बिस्तर गीला करता है ऑन एन एवरेज, और उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले अलार्म क्लॉक लगा देते हैं तो वो अलार्म क्लॉक से जग जाता है और फिर उठ करके पेशाब कर लिया, तो फिर उसका बिस्तर गीला होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। कुछ दवाई भी है जो दवा देने से बच्चे को रात में पेशाब नहीं आता है, लेकिन प्राय दवा बंद करने के बाद फिर रिकरेंस दोबारा ये काम तकलीफ शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग जल्दी दवा नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि अलार्म क्लॉक और गुड पेरेंटिंग से ही इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इस तरह से कंट्रोल करने के बाद रिकरेंस नहीं होता है, मतलब दोबारा ये चीज नहीं होता है। प्लस जो भी
मेडिसिन है जो कि हम लोग बच्चे को देते हैं, उसका कुछ ना कुछ हम लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, नर्व है, उस पर कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि वो नहीं दें, और ये नॉर्मल तरीके से एजुकेशन से, अवेयरनेस से, रिवार्ड से ही उसके बच्चे को नॉक्टर्नल इनकंटिनेंस को कम करें, ठीक हो जाता है। दूसरा जो नॉक्टर्नल इनकंटिनेंस का कारण है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का कारण, जिसमें रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है या लीक हो जाता है, उसका एक प्रोस्टेट भी कारण है कि प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाए और पेशाब को रोकने लगे तो दिन में तो आदमी वॉलंटरीली उसको रोक के रखता है, रात में सोने के बाद वो लीक करने लगता है, जिसकी जानकारी उसको नहीं होती है, और ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आदमी बाहर में सोशली मिलना नहीं चाहता, प्लस अपने घर से बाहर कहीं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर ये चीज़ हो गया तो फिर मुझे बड़ा अवेयरनेस मतलब एम्बैरेसिंग फील होगा वहाँ पे। तो इसलिए ये दोनों अलग चीज है। यूरिनरी इनकंटिनेंस टोटल जो है उसमें तो कंप्लीटली यूरिन लीक करते रहता है, लेकिन नॉक्टर्नल यूरिनोसिस जो रात में पेशाब हो जाता है, ये एक तरह से डेवलपमेंटल डिले है इन केस ऑफ चाइल्ड, बच्चे में। लेकिन एडल्ट में ये प्रोस्टेट के कारण और कुछ और कारणों से भी हो सकता है। Among few infections that occur in the urinary system, UTIs are common among people and especially among females. Dr. Amrendra Pathak tells us in detail about this. That urinary tract infection is more common in female than in male. ये फीमेल में पुरुष के अपेक्षा महिला में ज्यादा होता है, और उसकी वजह शरीर की बनावट है। फीमेल का जो पेशाब का रास्ता होता है वो छोटा होता है, और जो हम लोगों को टॉयलेट स्टूल पास करने का जो रास्ता होता है वो दोनों आसपास में होते हैं। तो वहां से इन्फेक्शन ट्रेवल करके बहुत आसानी से इन्फेक्शन यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस कभी कभी ये यंग एज में आफ्टर सेक्सुअल एक्ट या शुरू में जो सेक्सुअल एक्टिव होते हैं शादी के बाद, तो उस टाइम में भी ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा से ब्लैडर में जाके हो जाता है, और कॉमनली प्रेजेंट करता है पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, थोड़ा सा ज़्यादा और एडवांस हो जाए तो फीवर भी आने लगता है। तो ये कंडीशन फीमेल में इन कंपेरिजन टू मेल होता है। लेकिन जब एज ज्यादा हो जाता है 50-60 के बाद, तब फिर ये दोनों में लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि उस स्टेज पे जो मेल है उसमें प्रोस्टेट की बीमारी आ जाती है, और प्रोस्टेट के कारण जो पेशाब रुकने लगता है तो उसमें भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। प्लस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी को शुगर है या इम्यून डेफिशिएंसी की कोई डिजीज है या कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है, उसमें भी पेशाब में इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होता है। और जो ऐसा देखा गया है, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि आदमी को हुआ है, उसका इलाज आसान है अगर उसमें कोई और कॉज नहीं है। लेकिन अगर अगर उसमें कोई कॉज है, जैसे प्रोस्टेट हुआ, पेशाब का रास्ता सिकुड़ना हो गया, या फिर कुछ कहीं किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के बीच में कहीं रुकावट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। केवल दवा से वो ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ सर्जिकल या ओपीडी प्रोसीड्योर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके उसको ठीक करना पड़ता है। और जो हम लोग ये ब्लैडर हेल्थ मंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूटीआई उसका एक मेन कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से इसका सिम्टम भी फिर वही होता है, बार बार पेशाब होना, पेशाब पर से कंट्रोल खत्म हो जाना, बुखार आ जाना, प्लस कभी कभी किडनी काम करना बंद कर देता है, तो ये सीरियस हो जाता है। तो हमको इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है पेशाब के इन्फेक्शन को। फीमेल में तो ठीक है, जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको कोई सेकेंडरी कारण नहीं रहता है।
लेकिन मेल में अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ कारण होता है, या तो कहीं स्टोन आके रुक गया, उससे इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रिक्चर हो गया, या प्रोस्टेट बड़ा हो गया, या फिर कोई और कंजेनाइटल कारण है, उसके कारण बार बार यूटीआई। जैसे बच्चे में पोस्टेरियोरेथ्रल वाल्व होता है, यूरेथ्रल रिफ्लक्स की बीमारी होती है, इस सब कारण से भी यूटीआई होता है और उसमें भी इनकंटिनेंस हो जाता है। तो according to age, there are many diseases which leads to UTI, frequent urination, urinary incontinence, and in if not treated properly, it can lead to sepsis. मतलब शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर का, जो ये देखे कि कौन दवा दें जिससे फर्दर किडनी डैमेज नहीं हो और इसका इन्फेक्शन ठीक हो जाए और फिर दोबारा नहीं हो। इसलिए ऐसा सब तीनों चीज के लिए जरूरी है कि मूत्र रोग विशेषज्ञ आजकल हर एक जगह उपलब्ध है, उनसे सलाह ले लें। बाद में फॉलो अप अपने फिजिशियन या सर्जन से करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एक यूरोलॉजिस्ट का सलाह जरूर लेना चाहिए। People often complain of the sudden urge to urinate with the sudden loss of urine. This condition mostly gets ignored by the people, but it is in fact a problem to be looked upon. Dr. Amrendra Pathak informs us about certain rare and mostly ignored matters related to bladder health. एक होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। इसमें क्या होता है कि जो पेशाब को कंट्रोल करने वाला मसल है वो वीक हो जाता है। खास करके उस फीमेल में ये ज्यादा होता है जिन्हें बार बार नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं, तो उससे उनका पेल्विक फ्लोर का मसल वीक हो जाता है और यूरिन का जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो वो कभी अगर खांसी करेंगी तो उसमें यूरिन लीक कर जाएगा, या फिर अगर कोई भारी वजन उठाएंगी तो उसमें भी उसका लीक हो जाएगा पेशाब। तो ये दो कंडीशन है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी पेशाब कब अचानक लीक कर जाएगा इसकी जानकारी मरीज को नहीं रहता है। आज से 10-15 साल पहले ये दोनों बीमारी तो बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक था, इसका इलाज माकूल नहीं था, और इलाज था भी तो उससे मरीज को बहुत रिलीफ नहीं मिलता था। एंड इट इज सो एम्बैरेसिंग दैट इस एज में लोग बाहर जाना ही छोड़ देते, कहीं सोशल गैदरिंग में नहीं जाते थे, क्योंकि ये यूरिन ऐसा चीज है अगर लीक हो गया तो वो स्मेल करेगा, एवरीबॉडी विल आस्क यू वेयर फ्रॉम दिस स्मेल इज कमिंग, तो वो जाना छोड़ देते हैं। बाद में थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब हर एक तरह का जो पैड मिलने लगा है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, गुड क्वालिटी पैड, उससे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो कम हुआ। लेकिन ऑफ लेट लास्ट 10 ईयर से नई नई दवा आ गई है जिससे ये बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। और यूरोलॉजिस्ट जो मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो भी अब बहुत कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं जो इसका इलाज कर पाते हैं। प्लस फिजिशियन और सर्जन को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है कि ये दवा आ गए हैं मार्केट में, इसको देने से 50 से 60% इसमें रिलीफ मिल जाता है। ये जो बीमारी है ये ग्रेडेड है, ये ऐसा नहीं है कि अगर हुआ तो सबको हो जाएगा और हर एक दिन होगा। ये कभी भी ज्यादा और कम हो जाता है, थोड़ा लो ग्रेड का होता है। तो अगर दवा से 50% भी रिलीफ मिल जाता है, 40% भी रिलीफ मिल जाता है, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। तो ये दोनों बीमारी है जो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इंडियन, खास करके इंडियन पॉपुलेशन में। एक और इसका पहलू है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है कि ब्लाडर के वाल में एक तरह का सूजन हो जाता है और वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें कोई भी अन्य दवा काम नहीं करता है, केवल उसके लिए एक स्पेसिफिक दवा है जो देते हैं, तो वो 4-6 महीने देने के बाद वो सूजन कम हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। उसमें लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग सिस्टोस्कोपी करके ब्लाडर बायोप्सी करते हैं और डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। फिर वो स्पेसिफिक दवा देते हैं 6 महीने के लिए, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। फॉर्चुनेटली 5-10 साल
पहले तक तो ये बहुत कम था हिंदुस्तान में, हम लोग बहुत कम मरीज देखते थे, लेकिन अब चूंकि होल वर्ल्ड इज नाउ ए सिंगल विलेज, हर एक जगह की सभ्यता एक दूसरे से मिल गए, खाने पीने के तौर तरीके ये भी एक जैसे हो गए, तो अब हम लोग भी बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस देखने लगे हैं, जो कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पेनफुल यूरिनेशन, क्रोनिक पेन लोअर एब्डोमेन और यूरिनरी इनकंटिनेंस का एक मुख्य कारण है। तो हम लोग अब उसको भी कंसीडर करते हैं जब इस तरह के पेशेंट आते हैं और कॉमन मेडिसिन से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी हम लोग कंसीडर करते हैं और ठीक करते हैं उसको। इसके अलावा कुछ और रेयर डिजीज है जो कि पेनफुल यूरिनेशन करता है, जैसे किसी आदमी को अगर किसी दूसरे कारण से रेडिएशन लगा, जैसे सीए प्रोस्टेट है और उसको रेडिएशन थेरेपी दिया गया, तो उसके ब्लाडर में भी थोड़ा बहुत अंश चला जाएगा। उसी तरह से अगर बड़ी आंत का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, या और भी उस एरिया पेल्विक एरिया का कैंसर है जिसमें कि ब्लाडर में रेडिएशन लग गया, तो वो 1-2 साल के बाद थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। हालांकि मेडिसिन से बहुत बार ठीक हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाती है। Dr. Amrendra Pathak tells us about various kinds of cancers related to the bladder. यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके कैंसर भी होते हैं, और ये 6th मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का, मेल और फीमेल मिला करके। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं छुपा हुआ। तो जो आजकल हर एक जगह अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, हम लोग रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें ये पता चल जाता है कि किडनी ठीक है, यूरेटर ठीक है, पेशाब का थैली ठीक है, और पेशाब के थैली में कोई गांठ नहीं है, ट्यूमर नहीं है, क्योंकि ये आसानी से पता चल जाता है। और अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो वो 100% क्यूरेबल है, दूरबीन से इलाज होता है, बिना कहीं चीर फाड़ के किसी की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाता है। और ये भी सोशल टेबू हटाना है कि ये कैंसर हो गया तो अब ये मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उसको दूरबीन से हटा देते हैं, सेम पर्सन रहता है और फिर ठीक रहता है। जो छुपाता है, जो इस डिजीज को छुपाता है, और मान लो किसी को पता चला आज आ रहा है और वो 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास आ रहा है, तो उससे बीमारी थोड़ा फैल जाता है, लीवर में, हार्ट में, लिम्फ नोड में चला जाता है, तो ये दिक्कत होता है। तो इस बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब किसी को पेशाब में खून आता है, ब्लड आता है, और खास करके वो भी जबकि ब्लड के साथ उसके थक्के जमे होते हैं, तो उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि 1 मिनट डिले न करें और अपने यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें और उसको बताएं कि मुझे पेशाब में खून आया है। ये मोस्टली कैंसर के कारण होता है, लेकिन कभी कभी स्टोन हो उसमें भी हो जाता है, इन्फेक्शन में भी हो जाता है। लेकिन जो पेशाब के साथ साथ खून आता है, वो क्लॉट के साथ, वो प्रायः कैंसर में होता है, खास करके उन आदमी में जिनको सिगरेट पीने की आदत है, तंबाकू और खैनी खाने की आदत है। इसलिए मैं लास्ट में ये बताना जरूरी समझा कि ये मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए कि पेशाब में खून आना को कभी भी लाइट नहीं लेने, पहले सोचें कि ये कैंसर होगा, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से इलाज करें, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और भी बहुत तरह की जांच वो करा के पता करें और अपना इलाज करें। अर्ली स्टेज में इट इज ए क्यूरेबल डिजीज। While bladder health is not often top of mind, there are ways to keep your bladder healthier year round. Dr. Amrendra Pathak dispels certain myths related to it and informs us of the ways to take care of our bladder health. This bladder disease month is that to remove the social stigma that this is a incurable disease or this is a very bad disease and this is a very rare disease. This is not like that. This is a common disease. As I told you, after 60, 1 out of 2 patients has this type of problem, bladder problem. And as the age, the longevity are gradually increasing, now the aging population of India is also increasing significantly. So the bladder problem is gradually bound to increase, and its awareness, proper treatment, and if needed, surgery should be done to avoid the further progress of this disease, and इसको
उस कंडीशन में जाने से कि जिससे किडनी खराब हो जाए या इन्फेक्शन से उसकी जान ही चली जाए, उस कंडीशन से रोकने के लिए ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। जब पहले हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में थे, तो जब देखते थे कि कोई पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसको पेशाब लीक हो रहा है, उसको रात में सोई सुबह उसकी पूरा बिस्तर गीला रहता है, तो ऐसा देखा जाता था सोसाइटी में कि अब इसका लास्ट टाइम आ गया। अब जब ये इसको अपने शरीर की सूझबूझ नहीं है, जो पेशाब ही लीक कर जाता है, तो जो केयर गिवर है, उसका अटेंडेंट, उसके बेटे, घर के अदर फैमिली मेंबर, दे गेट अफ्रेड कि अब इसको कैसे संभालें। लेकिन अब इस ब्लैडर डिजीज मंथ का यही मेन उद्देश्य है कि हम इसको समझें, और ये क्यूरेबल है, और ये बहुत, इसका क्योर बहुत कॉस्टली नहीं है। अगर टैक्टफुली इसको ठीक करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका इम्प्रूव कर जाएगा, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है एज्ड पीपुल को ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो भी कम हो जाएगा। तो अवेयरनेस बढ़ाना इस मंथ में ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब जहां तक रही बात डाइटरी हैबिट की, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि सोसाइटी में एक मिथ है कि ज्यादा पानी से यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मिथ ठीक नहीं है। हम लोगों के ब्रेन में एक मशीन लगा हुआ है जो हम लोगों को ये बताता है कि प्यास लग गई तो पानी पी लो, अभी प्यास नहीं लगी है तो पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। किसी आदमी को फोर्स करके पानी नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कुछ आयुर्वेदिक और कुछ और अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बताते हैं कि 5 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, 7 लीटर पानी पियो, ये सब चीज नहीं है। नॉर्मली हम लोगों के शरीर से 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन पर डे आता है, और हम लोगों को लगभग 500-700 ml यूरिन अकॉर्डिंग टू सीजन, 500-700 ml वाटर हम लोगों के सरफेस, शरीर के सरफेस से, और हम लोग जो श्वास लेते हैं उसके थ्रू लीक होता है। तो हम लोगों को लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीना तो मैंडेटरी है। उससे ज्यादा पानी पीने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बहुत हॉट वेदर है तो हम लोग 2.5 लीटर 3 लीटर पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड वेदर में 1.5 लीटर भी ठीक है, 2 लीटर भी ठीक है। ये नहीं करना है कि अब जैसे सुबह उठने के साथ 3-4 गिलास पानी पी लिए तो 1-1.25 लीटर हो गया, और उसके बाद 4-5 बार उसको फटाफट यूरिन हो गया। नो, ही ट्रीट इट एज ए डिजीज। आप पानी नॉर्मल कर दो, 1 गिलास पी लो, 200 ml 300 ml पी लो, तो ये जो प्रॉब्लम है अपने आप ठीक हो जाता है। प्लस इसका थोड़ा सा और भी साइड इफेक्ट है, हार्ट को, किडनी को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है इस एक्सेस वाटर को निकालने के लिए। तो हम लोगों को पानी बिना मतलब का नहीं, फोर्सफुली नहीं पीना चाहिए। जितना प्यास हो उतना पीना चाहिए। प्लस जिस आदमी को रात में बार बार पेशाब होता है उसको हम लोग ये सलाह देते हैं कि चाय, कॉफी और जो कोई ड्रिंक है, एरेटेड ड्रिंक है, वो बोलते हैं कि चार कैफिनेटेड। पाँच, हाँ, वो जो 4 बजे शाम से पहले पी लो, जिससे कि वो 5-6-7 बजे तक मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर निकल जाए, तो ये रात को बार बार उठने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो उसको लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना है। कुछ मरीज होते हैं ओल्ड एज में जिसको कि 5-10 दवाइयां खानी पड़ती है, और वो एक दवा एक एक करके खाता है, तो 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी तो वो रात में पी लेता है 10 बजे। तो अब वो पानी एक्स्ट्रा गया, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो उसको उसको भी कम करना है। 2-3 दवा एक साथ खा ले, एक घूंट पानी से ही काम चलाएं। और जो दवा सुबह खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा हो, दिन में खा के खत्म करें तो रात में बार बार उठने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक तो ये पानी और ये टी कॉफी की बात है। दूसरा कि और भी जैसे मिल्क पीने का हैबिट हर एक आदमी को होता है कि रात में 9-10 बजे पियेंगे। अगर उनको ज्यादा बार बार पेशाब जाना है तो वो आप शाम में पी लें या सुबह पी लें, तो ये प्रॉब्लम भी, उनका न्यूट्रिशनल डाइट भी कंप्लीट हो जाएगा, और बार बार रात में यूरिन भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके ओके अलावा सर। और कुछ साइट्रस जूस होता है जो कि ज्यादा पेशाब कराता है, तो उसको भी शाम में अवॉइड करना चाहिए। Dr. Amrind Pathak speaks about the initiatives by the Government of India such as Jan Aushadhi Kendras, where people can avail themselves medicines,
and the necessity to take care of the older age group members when it comes to bladder health. Who has elder people in their family, they should be more aware. They should go to urologist, explain the problem of the patient, because these old people have some difficulty in communicating with doctor. Some have hard of hearing. Some cannot explain due to language, different language. So the main guardian of the family should take him to doctor, take medicine, and simple medicine can cure him. There are many very good quality diapers available, napkins available, which can be used to improve his quality of life. Once his quality of life will improve, he will become less dependent on other, and once he will start mixing with normal people with diaper or with medicine, his problem is over, and they will explain that he has a problem, but it is controlled with medicine and with this diaper, so nothing to harm. And the quality of life of people is very good. He will enjoy his old age rather than curse himself that why I am surviving, why not I am dying. What actually happened 10, 15 years back. Now it is different. Now there is financial improvement. People can purchase medicine. There are many Jan Aushadhi Kendra where all these medicine are available at very cheap rate. This is a very good initiative by Government of India, that Jan Aushadhi Kendra और प्रधानमंत्री दवाई की जो दुकान है उस पे ये दवाइयाँ एक तिहाई या हाफ से भी कम रेट पे मिलती हैं। बस रेगुलर टाइम पे खाना है और सरकारी और प्राइवेट में जाके सलाह लेना है, इलाज कराना है और ठीक से जीना है। अपने ओल्ड बुढ़ापे या मिडिल एज की जिंदगी को इस बीमारी से खराब नहीं होने देना। यही मैसेज है ब्लैडर अवेयरनेस विद ब्लैडर डिजीज अवेयरनेस मंथ का। Thank you for watching. Stay tuned with PBNS for more stories on tips to keep yourself healthy straight from the experts.